Friends, let me share with you a management lesson from Mahabharata. This is on stress management lessons from Mahabharata. An executive in a corporate setup can draw several lessons from the dialogue between Krishna and Arjuna on the battlefield of Kurukshetra to manage their own stress effectively. The principles Krishna imparted to Arjuna can be adopted into practical strategies for executives to handle stress in their demanding roles. Here is how an executive can manage stress using insights from Bhagavad Gita. Self-reflection and acceptance, acknowledging stress. Krishna begins by allowing Arjuna to express his fears and confusion. He acknowledges Arjuna's stress without judgment, recognizing it as a natural response to the situation. As an executive, start by acknowledging your own stress. Understand that feeling stressed is a natural response to high-pressure situations. Instead of ignoring or suppressing these feelings, accept them as they are. The self-awareness is the first step towards managing stress effectively. इन्हें कब तक देखते रहोगे पार्थ? देखने दीजिए केशव, देखने दीजिए। क्या पता इस युद्ध के उपरांत इनमें से कौन देखने को मिलेगा और कौन नहीं देखने को मिलेगा। माधव, मैं ये किन लोगों से युद्ध करने आया हूँ और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मैं किन लोगों के प्राण दांव पे लगा रहा हूँ। दोनों ही ओर तो एक ही वंश के लोग खड़े हैं, एक ही वृक्ष की डालियां। वो जो सामने श्वेत वस्त्र पहने श्वेत रथ पर सवार खड़े हैं, वो संसार के लिए गंगा पुत्र होंगे। मेरे लिए तो वो स्नेह की गंगा है। मैं अपने मैले धूल में सने वस्त्र पहनकर इनकी श्वेत गोद में घुस जाया करता था और वो मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे। वो मेरे पितामह है केशव, वो मेरे पितामह है। वो आचार्य द्रोण है जिन्होंने मेरी आत्मा को नहला दिया अपने ज्ञान सागर में। और इस शिष्य की झोली में अपना सारा ज्ञान उड़ेल दिया। उन्होंने जितना मुझे दिया है ना केशव, उतना तो स्वयं अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दिया। मैं इनसे युद्ध करने आया हूँ। मैं इनके प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा। ये सोचने से ही मेरा अंग अंग शिथिल हुआ जा रहा है। मेरा मुंह सूखा जा रहा है। धनुष और बाण पकड़ने वाले यह हाथ सुन्न हुए जा रहे हैं। मेरे शरीर में वो कपकपी है केशव जो मैंने कभी शिशिर ऋतु में भी अनुभव नहीं की थी। मेरा गांडी मेरे हाथ से गिरा जा रहा है केशव। मैं इन पर बाण क्या चलाऊंगा केशव, जिनके सत्कार के लिए स्वयं मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए हो। मैं इस रणभूमि कुरुक्षेत्र को अपने ही वंश की श्मशान भूमि नहीं बना सकता केशव, अपने ही वंश की श्मशान भूमि नहीं बना सकता। Identify the root causes, understanding stressors. Krishna helps Arjuna to identify his core fears, attachment, fear of failure, and ethical dilemmas. Understanding the root cause of stress allows for targeted solutions. Identify what is causing your stress. Is it workload, unrealistic expectations, lack of control, interpersonal conflicts, or fear of failure? Understanding the specific triggers helps in addressing them effectively. श्रेष्ठ पुरुष तो यूं विषाद में डूबा नहीं करते। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की इस निर्णायक घड़ी में नपुंसक न बनो पार्थ, नपुंसक न बनो। हे परंतप, हे शत्रु संहारक, हे धनंजय, तुम्हारे ये भाव अनार्य हैं। ये तुम्हें स्वर्ग से गिरा देंगे और कीर्ति से, और तुम स्वयं ही अपने तिरस्कार का कारण बनकर रह जाओगे। इसलिए हे पार्थ, हृदय की इस दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। Reframe the mindset, changing perspective. Krishna encourages Arjuna to see the situation from a higher perspective, focusing on his duty, that is dharma, rather than his attachment to outcomes. This helps Arjuna detach from fear and anxiety. Reframe your perspective on stress-inducing situations. Instead of seeing challenges as threats, view them as opportunities for growth and learning. Understand that not all outcomes are within your control, which is a fact of life. इसलिए क्षत्रिय धर्म ही तुम्हारा धर्म है। उस धर्म का पालन करो। अधर्म के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। अन्याय और अनीति के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। और यदि इस निर्णायक घड़ी में तुमने सत्य के पक्ष में और असत्य के विरोध में अस्त्र नहीं उठाए पार, तो तुम्हारे धर्म के साथ साथ तुम्हारी उज्जवल कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ पार, तो केवल तुम्हारे विरोधी ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज तुम्हें कलंकित कापुरुष कहेगा और आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर और पापी मानेंगी। इसलिए हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे,
और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कौन्तेय उठो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। Focus on duty and detachment, concentrating on responsibilities. Krishna advises Arjuna to focus on his duty as a warrior and not be attached to the results of his actions, that is niskama karma. This detachment helps reduce anxiety about the outcomes. Focus on a role and responsibilities rather than being overly concerned with results. Understand that you can control your actions and efforts, but not always the outcomes. Set clear, process-oriented goals that emphasize efforts and execution rather than just outcomes. Krishna emphasizes the importance of balanced mind, unaffected by success or failure. He teaches Arjuna about emotional composure, which is crucial in stressful situations. Develop emotional resilience to stay calm and composed under pressure. Recognize that setbacks and challenges are part of the journey and not reflections of personal failure. तुम्हारे पास तो केवल यही विकल्प है कि तुम क्या करो या क्या न करो, परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ। कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे अधिकार की सीमा इस विकल्प पर समाप्त हो जाती है कि तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। इसलिए हे पार्थ, कर्म के प्रतिफल की चेष्टा न करो। तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो। यही कर्मयोग है पार्थ, यही कर्मयोग है। इस रहस्य को समझो पार्थ कि तुम्हारे पास तो केवल करने या ना करने का विकल्प है, किंतु कर्म के अंत पर मनुष्य के अधिकारों की सीमा समाप्त हो जाती है। Develop a support system, leveraging team and mentors. Krishna serves as Arjuna's guide and mentor, providing the support he needs to overcome his doubts and fears. Build a strong support network of trusted colleagues, mentors, and advisors who can offer guidance and encouragement during stressful times. Foster relationships with peers, mentors, and executive coaches who can provide perspective and advice. Encourage open communication within your team to build trust and support. Create a culture where seeking help is seen as a strength, not a weakness. मुझे कर्तव्य का मार्ग ठीक से दिखाई नहीं दे रहा केशव, इसलिए हे वासुदेव, आप मेरी आत्मा के भी सारथी बन जाइए। मैं जानता हूँ कि मैं धर्म और अधर्म के बीच में खड़ा हूँ, किंतु ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर। मेरा मार्गदर्शन कीजिए केशव। इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक से बचने का मार्ग दिखलाइए मुझे। अपनी इस मानसिक अवस्था में तो मैं युद्ध नहीं कर सकता गोविंद, गोविंद मैं युद्ध नहीं कर सकता। न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम। By applying these principles from Krishna's teachings, corporate executives can effectively manage their stress, maintain clarity of thought, and lead their teams with confidence and resilience. These strategies not only help in personal stress management, but also set a positive example for others in the organization, fostering a culture of well-being and emotional intelligence. Thank you.